नमस्ते, बुल्ला, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राम राम जी। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और आप देख रहे हैं फिजी एंड फोकस। आप सब जानते हैं मैं हूं आप सबकी होस्ट एंड दोस्त शिप्रा शर्मा। हम इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं अनसीडेड टेरिटरीज ऑफ स्क्वैमिश, सिल्वरटूथ एंड मस्क्यूम नेशंस। और शुक्रिया इंडिजिनस लोगों का जो हमें लैंड अपनी हमारे साथ शेयर करते हैं। सो वी आर रियली थैंकफुल टू इंडिजिनस पीपल। आप सभी की फ़ोन कॉल्स का, फीडबैक का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा हमें इंतज़ार रहता है आपकी फ़ीडबैक का। सो फिजी के इलेक्शन होने जा रहा है दिसंबर 14 को। इफ़ यू आर ड्यूअल सिटीजन एंड आपके पास जो है दोहरी नागरिकता है तो आप वोट कर सकते हैं। सो प्लीज़ गो हैंड एंड एक्सरसाइज योर राइट टू वोट एंड वोट फॉर द पार्टी विच यू थिंक इज़ गुड फॉर फिजी। सो आप सब जानते हैं दैट फिजी होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस इन अवर हार्ट्स। इट इज़ अवर बर्थ प्लेस, इफ़ नॉट अस देन अवर पेरेंट्स बर्थ कंट्री एट लीस्ट। और देर इज़ वन मोर अनाउंसमेंट, नवंबर 25 अंटिल दिसंबर 10 को हम याद करते हैं 16 दिनों को एक्टिविज़म के। और नवंबर 25 अंटिल दिसंबर 10 को हम याद करते हैं इन 16 डेज को एक्टिविज़म। 16 डेज़ में उन लोगों को याद किया करते हैं जो किसी भी तरह से वायलेंस से गुजर रहे हैं और वायलेंस का शिकार हैं। तो स्पेशली वुमेन और उनके बचाव के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं विक्टिम लिंक एट 1800-563-0808। December 1 is known as World's AIDS Day. Since the time of the epidemic, 84 million people have been infected by this HIV virus and about 40 million worldwide people have died of HIV. With proper booster shots, this virus is less effective. So ऐसा recommend किया जाता है कि आप booster shots ज़रूर लें ताकि आप इस वायरस से अपने आप को बचा सकें। Our team at Fiji and Focus, we like to congratulate the new Premier of BC. It's David Abbey. BC surplus is around $5.4 billion. See if this government gives money back to the families that are struggling. Alberta is giving $600 to the families with the children under the age of 18 because we all know that everything is so expensive these days. Hope our government does the same. So I'll be right back after these words from our sponsors. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vick Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vick Prasad now on 604-306-6647. Vick Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vick Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vick Prasad now on 604-306-6647. Vick Prasad is associated with Craft Mortgages. Arvind's Curry and Cocktail, Indian cuisine. They do catering for all occasions and they do free delivery. Please call 604-515-1070. Address is 420 6th Street, New Westminster. Open 7 days a week from 11 a.m. to 9 p.m. For deliveries, call 604-515-1070 or arvindscurry.com. Bollywood Banquet Hall and Conference Center, located at Pile Business Center at 201-8166 128th Street in Surrey. No celebration is too small to accommodate you. They have newly renovated 2 halls to serve you, up to 1,000 guest capacity, top-notch chefs to delight you with delectable and heavenly cuisine. So just call Bollywood Banquet Hall at 604-598-2700 for your events. अब हमारे साथ हर बार की तरह पूरे हफ्ते भर की न्यूज़ लेकर विक प्रसाद जी हाजिर हैं। वेलकम विक प्रसाद जी। नमस्कार। फिजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। फिजी फर्स्ट लीडर वोरेंगे बाइनीमरामा का कहना है कि नेशनलिस्ट वनुआताको लावो पार्टी के पूर्व नेता एलिसिया दावुलोवो ने फिजी में रेशियल डिवीजन का कारण था। शनिवार को लोटोका के शेली पार्क में अपनी रैली में बोलते हुए बाइनीमरामा कहते हैं कि दावुलोवो 2000 में कू का इंस्टिगेटर था और उसका लालच था जो रेशियल डिवीजन करना चाहता था। बाइनीमरामा ने कहा है कि दावुलोवो को विपक्षी दलों के कुछ मौजूदा उम्मीदवारों का समर्थन भी प्राप्त हुआ था। बाइनीमरामा कहते हैं कि यह मिलिट्री की स्विफ्ट एक्शन थी जिसने बदलाव लाया था।
फिजी फर्स्ट लीडर का कहना है कि रेसिज्म की पूरी तरह से खत्म करने की बहुत ज़रूरत है। वो फिजी फर्स्ट से देश में स्थिति सुनिश्चित करने के लिए बुद्धिमानी से वोट करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। फिजी फर्स्ट लीडर का कहना है कि उनके पास शिक्षित व्यक्तियों का एक टीम है जो अगले 4 वर्षों तक देश का नेतृत्व करने और इनके या लोगों की सेवा करने के लिए तैयार है। लगभग 500 समर्थकों ने शनिवार सुबह नॉर्दर्न डिवीजन में पहली पार्टी रैली में पीपल्स अलायंस लीडर सितेवेनी रंबुका का स्वागत किया। भीड़ को संबोधित करते हुए रंबुका ने ये कहा कि ये बड़ी संख्या में आए हुए लोग सरकार में बदलाव लाने की भूख को दर्शाती है। रंबुका ने अपने समर्थकों को याद दिलाया है कि 14 दिसंबर को मतदाताओं के पास अपनी सरकार चुनकर वह परिवर्तन लाने की शक्ति है। रैली पार्टी के लिए आने वाले चुनाव में अपने उम्मीदवारों को इंट्रोड्यूस करने का एक उपयुक्त समय था, जिसमें तुई दकाउ रातू नईंगामा ललम्बलावू, उनके बेटे रातू ओंटेनियो ललम्बलावू, लिंडा तुम्बुया, फिलिमेनी वोसरोंगो, तुई नमुका रातू तेविता नियुमतलाउ और फॉर्मर कमिश्नर नॉर्दर्न जोसेफा वोदिया शामिल थे। रंबुका का कहना है कि देश जिन सभी समस्याओं का सामना कर रहा है उनका एकमात्र समाधान मौजूदा सरकार को वोट देना है। प्रोफेशनलिज्म, न्यूट्रलिटी और कल्चरल सेंसिटिविटी मुख्य लक्षण है जो मल्टीनेशनल ऑब्जर्वर्स सोमवार से शुरू होने वाले चुनाव के अपने असेसमेंट के दौरान उपयोग करेंगे। एमओजी कोऑर्डिनेटर पॉल वोजिस्की का कहना है कि शनिवार को सुवा में अपने अंतिम प्रशिक्षण के 32 ऑब्जर्वर्स के साथ उठाए गए ये कुछ प्रमुख मुद्दे हैं। इन ऑब्जर्वर्स को अब देश भर के विभिन्न प्री पोल सेंटर्स में तैनात किया जाएगा। वोजिस्की का कहना है कि एमओजी मतदान पूर्व के अपने असेसमेंट पर एक बयान जारी करेंगे, जिसे 14 दिसंबर को इलेक्शन डे से पहले पब्लिश किया जाएगा। देश भर के विभिन्न केंद्रों पर सोमवार से प्री पोलिंग शुरू हो जाएगी और शुक्रवार तक चलेगी। यूनिटी फिजी लीडर सवेनादा नरुम्बे का कहना है कि उनकी पार्टी ने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने में कभी हिस्सा नहीं लिया था। उन्होंने अपने पार्टी को एक साफ सुथरी पार्टी बताया है और कहा कि फिजी में वो कभी किसी कू के हिस्सा नहीं रहे। हालांकि फिजी रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर ने दोहराया है कि उनकी पार्टी फिजी फर्स्ट को छोड़कर चुनाव के बाद अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कोलिशन कर सकती है। नारुम्बे का कहना है कि उनकी पार्टी द पीपल्स अलायंस के साथ कोलिशन करने को तैयार है और यह एक रियलिस्टिक कदम होगा। उनका मानना है कि यह लीडरशिप को बदलने के लिए लोगों की आवाज़ और राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देने के बारे में व्यवहारिक होने की ज़रूरत को दर्शाता है। 28 वर्षीय एक गाड़ी चालक पर पिछले सप्ताह दोलईसुवा में एक कार दुर्घटना के बाद 29 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत का आरोप लगाया गया है। आरोपी पर डेंजरस ड्राइविंग के साथ एक मामले में मौत और एक मामले में ड्राइवर्स लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने और एक मामले में शराब के नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगाया गया है। आरोपी को बृहस्पतिवार को नसीनु मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया था। उधर सिंगटोका में पिछले सप्ताहांत दर्ज की गई दूसरी घातक दुर्घटना में एक ड्राइवर पर भी आरोप लगाया गया है कि उसे सोमवार को सिंगटोका मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। अभियुक्त पर डेंजरस ड्राइविंग के एक मामले में मौत का आरोप लगाया गया है। उन्हें जमानत मिल गई है और 25 जनवरी को उन्हें फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। आप देख रहे फिजी इन फोकस विक प्रसाद के संग अब कुछ स्थानीय समाचार। कई बीसी के माता पिता इस महीने दिसंबर फर्स्ट से चाइल्ड केयर फी में नई कटौती के कारण कुछ कम चाइल्ड केयर फीस पे करेंगे। कुछ फैमिली कहते हैं कि वे चाहते हैं कि अधिक लोग $10 डे चाइल्ड केयर फी का लाभ उठाएं। प्रांत का कहना है कि 69,000 बच्चे इस न्यू चाइल्ड केयर फी रिडक्शन से लाभ उठा सकते हैं। 1 दिसंबर की स्थिति के अनुसार माता पिता को प्रत्येक बच्चे के लिए एक लाइसेंस चाइल्ड केयर फैसिलिटी में प्रति महीना $550 की बचत करने में सक्षम रहेंगे। आप देख रहे फिजी इन फोकस विक प्रसाद के संग अब कुछ खेलकूद की जगत की जानकारी। दुबई सेवंस इस सप्ताहांत समाप्त हुआ। फिजी टीम क्वार्टर फाइनल्स में अपना जगह नहीं बना पाए। पूल प्ले कुछ इस प्रकार था।
फिजी ने यूरुग्वे को 52-0 से पराजित किया। फिजी और न्यूजीलैंड के बीच में जो खेल हुआ उसमें फिजी की हार न्यूजीलैंड से 24-7 से हुआ। फिजी ने अर्जेंटीना को 14-7 से पराजित किया लेकिन क्वार्टर फाइनल तक प्रवेश नहीं कर पाए। सेमीफाइनल में यूएसए और आयरलैंड के बीच में जो खेल हुआ उसमें आयरलैंड की जीत 12-7 से हुआ। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 26-19 से पराजित करते हुए फाइनल में अपना जगह बनाया। थर्ड प्लेस में न्यूजीलैंड ने यूएसए को 31-12 से पराजित किया। फाइनल में साउथ अफ्रीका ने आयरलैंड को 21 पॉइंट्स टू 5 से पराजित करते हुए कप को जीत लिया है। वर्ल्ड कप उधर कटार में पूरे पैमाने पर जारी रहा। पूल प्ले समाप्त हो चुके हैं। राउंड ऑफ 16 का जो खेल है वो शुरू हो चुका है। शनिवार को नेदरलैंड्स और यूएसए का भिड़ंत हुआ जिसमें नेदरलैंड्स ने यूएसए को 3-1 से पराजित किया। अर्जेंटीना ने 2-1 से ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया। फ्रांस ने पोलैंड को 3-1 से पराजित किया। इंग्लैंड की जीत सेनेगल से 3-0 से हुआ। जापान, क्रोएशिया और ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मोरक्को, स्पेन, पोर्चुगल, स्विट्ज़रलैंड ये इतने गेम अभी बाकी है। तो क्वार्टर फाइनल्स की ओर अगर हम देखते हैं तो पहला क्वार्टर फाइनल नेदरलैंड्स और अर्जेंटीना का होगा और दूसरा क्वार्टर फाइनल इंग्लैंड और फ्रांस का होगा और अभी 2 क्वार्टर फाइनल्स बाकी है। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। हेलो एंड वेलकम टू फिजी इन फोकस। जी हाँ दोस्तों, आप फिजी इन फोकस को देख रहे हैं। मैं हूँ कमिला और मेरे साथ में बहुत स्पेशल गेस्ट। So my guest today is Ron Prasad, and Ron is an award-winning author, and this is the third book that he has released recently. And he's originally, parents are from Fiji, but he was born and raised in Vancouver. But now he's living on the island. Thank you so much. Be able to come into our studios, talk to our viewers, to talk about yourself and talk about the book. Thank you for having me. So talk a little bit about yourself first. Yeah, my name's Ron. I'm a writer, and I was, like you said, I was born in Vancouver. I was raised in New West, and moved to the island about 6 years ago. And I've been writing for 27 years now. And this is my third. You don't novel. even look like 27 years. So, but anyways, go ahead. Yeah, and so this book's really important to me and our family and my wife, and it just came out, and I'm excited to be out talking about it. So now next question I'm going to be asking you, this is the cover of the book. I haven't read it. I got this book today, which I'm definitely going to read it. So what is in the name? How, people are always say, what's in the name? So what is in the name about the book? The book is called Ellie's Albatross, and Ellie is the main character in the book. And the word albatross, it's a bird, but there's a famous poem called Rhyme of the Mariner, and it symbolizes a weight that somebody can carry, that they carry with them throughout their lives. And it sort of represents adversity, when we're going through struggles in life, that we can carry this weight with us. And the book is about overcoming that adversity. Mm-hmm. Before that, you also wrote 2 other books. Yeah. What were those other 2 books? One is called Synapse, and the other one is called Paradox and Rebirth. And Paradox and Rebirth, again, it's about a man in Vancouver who can't find his way in life. And, he does, I won't give anything away, but he does something drastic in trying to find his way and find meaning in his life. And this book is a lot about that too. It's about, so many of us go through struggles. This character goes through illness, and, that can affect us in so many ways, in how, you deal with your family and your job, and what it does to your dreams. And how do we overcome that? How do we find hope again? That's really the core of what the book is about. Mm-hmm. We always hear the stories in the media every time, all the time. Fijian, we have about 70,000 people living here, but we don't hear too much positive things happening in the community. And you are a hidden gem. Like I say, there are lots, maybe like you, that we have not explored or found out.
And this is the show. If you know somebody who is doing great work in the community, we want to highlight the good side of our community, our youngsters, our youth, our grandkids, and all that. So I am so glad that you came all the way from the island to be able to give us this moment. Zooms are not the same. Yeah, You won't be able to agreed. sit in this beautiful studio. Agreed, yeah. And I wouldn't be holding the book in my hand. But thank you for doing that. And those people that are watching you today, there are a lot of people who have a lot of passion, but they start with that and they get bored and they say, no, whatever, they drop their passion and the ideas. What is one message you want to tell everybody, or youngsters, or anybody? It doesn't matter. You can be a writer at 90 if you like to Yeah. be. Age is not the issue, but to follow your passion and go with it. Yeah, I think I can sum it up by saying it's never too late. It's never the wrong time and it's never the right time. You just have to do it. My wife tells me a lot, that she points out certain actors, like you said, they don't find their success until they're in their 50s or 60s, and that's okay. If it's something you love to do, just do it. Don't worry about criticism. Don't worry about where it's going to go or how it's going to end up. Just do it. Get out there. Put in the time. That's and surround yourself with people that support you. And I think that's really important. And you guys can help each other. Rise up. And like you said, I appreciate you inviting me here. And we're lifting each other up. So that's what I would say. Yeah. And I didn't know you anyways. I had Yeah. to do search. They said you have written the book and it's from Fiji. Those are the only two things that stuck with me. And I said, we do all those other things. I have to hunt you down to see who I am and where are you living. So thank you so much for being able to come into the studios. Thank you for the gift. I will definitely read it. And what's your next chapter in your life? Well, that's a good question. I think right now I'm focusing on getting this book out. It's really important. I think if you read this book and you like the book, tell your friends, write recommendations, write reviews, tell your friends in book clubs. Let's get word out. And it's an important book. It is about how all of us overcome adversity and find hope. And I think. That's important to me, and it would be great to get that out and share it. So, yeah, I appreciate all that support. The last word is, if you're doing something different or maybe writing a new book or something like that, you know where to come and Yeah, thank you. advertise yourself and make yourself known. And this is a station for you. Thank you so much. Thank you so much. To be able to come and do this for our viewers. Thank you so much. Appreciate it. हमारे पास कुछ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स भी हैं. प्लीज़ हैव योर पेन एंड पेपर टू नोट डाउन. साहस कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड्स अ फ्री हेल्पलाइन. अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं तो आप इस हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं. इनका नंबर है 604-900-9221. आपकी सभी बात कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी. Christmas fundraiser is taking place on December 9 at 6:30 p.m. at Royal Palace Banquet Hall in Burnaby. The proceeds from this event will go to Moving Forward Family Services Society. For tickets and more information, आप नीरा को कॉल कर सकते हैं जिनका नंबर है 604-613-4684, या जॉसी चौहान जी को कॉल कर सकते हैं जिनका नंबर है 778-892-7388. Canadian Empowered Women of Fiji Foundation is doing Christmas dinner and dance on December 2 at 6:30 p.m. at Khanna Banquet Hall in Surrey. Please bring an unwrapped toy for toy drive. Toys will be donated to BC Children Hospital. For tickets and more information, please call at 604-825-8261 or 604-831-0240. Lower Mainland Multicultural Family Support Services and Asian Pulse are joining hands together to celebrate Women's Empowerment Day to help children and women in need. Come join us on December 11th at Grand Taj Banquet Hall for an early brunch, 11 to 3, and lots of activities, booths, and interesting events. For more information, please call Kamila Singh at 604-537-5123. Thank you. 16th Annual Victor Ghara
toy drive is taking place on December 10 at Riverside Banquet Hall. This toy drive is in the memory of man with a golden heart. Since Vick Prasad away 16 years ago with sleep apnea, he always used to go and donate toys to BC Children's Hospital. Please drop off unwrapped toys at Riverside Banquet Hall or call Harvey Cooner at 604-671-4180 or email at harveycooner1@gmail.com. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अबूला फीजी। जी हाँ दोस्तों, हमारे गेस्ट आए हुए हैं डैनी सिंह जी और वो एक बुक लेकर आए हैं दिस टाइम हमारे स्टूडियोज में। और आज जो हमारी बातचीत होगी वो जो बुक है, किसने बुक को लिखा है, ये बुक में क्या है, इट्स ऑल अबाउट अ साई केम टू फीजी, दैट्स व्हाट द बुक आई कैन रीड फ्रॉम हियर। लोगों का बहुत फोन कॉल्स आए हैं, बहुत सारे डिवोटी है यहाँ पर जो साईं बाबा में साईं बाबा के डिवोटीज है। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं बुक के विषय में। क्या बता सकेंगे बुक क्या है बुक में, किसने लिखा है? टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट। जी हाँ, इस पुस्तक को लिखने वाला का नाम है सुब्रमण्यम। अच्छा। और सुब्रमण्य एक्चुअली फिजी के जो हमारे उनको बोलते हैं, तो वो प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी साउथ पैसिफिक में। और वो बाबा के बहुत अच्छे भक्त हैं और वो जाते हैं पुटपर्ती, तो वहाँ पर उन्होंने बाबा की यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर करके आया है। अच्छा। उनका वो एक अच्छा मित्र है वहाँ पर बाबा के, उसका नाम है प्रशांत लूथरा। वो वहाँ के जो लेक्चरर है वो बाबा इनके साथ से अच्छा मिलता जुलता है। तो सब मिलकर उनका इनिशिएशन आया कि एक पुस्तक लिखना चाहिए फिजी के बारे में। तो लिखा गया है व्हेन साई केम टू फिजी, मतलब एक भगवान का प्रचार कैसे हुआ। तो उन्होंने बहुत लोगों को इंटरव्यू लिया है और मेरा भी उसमें लिया है। तो इसमें मेरा पहला चैप्टर जो मेरा लिखा हुआ है इसमें, और वो इसमें उन्होंने मेरा फोटो भी दिखाया है। इसमें मैं यहाँ पर खड़ा हूँ 1972 में, 50 बरस हो गया है। अच्छा, 2022 अभी से हो रहा है। ये बाबा के 23 नवंबर बर्थडे के समय मैं पुटपर्ती गया था, तो मैं उनके घर पे गया, तो उनके बड़ा भाई जो शिष्य महाराज हुए उनके साथ मेरा फोटो ले गया दिया गया। तो इस पुस्तक में मैंने ये बताया है कि हमने फिजी में कैसे शुरू किया बाबा का काम, कैसे हम लोग ने पहला समिति बनाया। संत भाई देसाई जो एस.बी. देसाई बुक शॉप वाले से, वो हमारे प्रेसिडेंट हुए और वो बड़ी लंबा कहानी बहुत है, पर वो हमारे प्रेसिडेंट हुए। और फिर हमारा एक वाइस प्रेसिडेंट था मिस्टर वेंकट राम नायडू। उसके बाद एक रंजीत सिंह का लड़का था, वो बाबा सब दर्शन करके आया था, वो सेक्रेटरी बना। एक नटवर लाल ट्रेजरा बना, इस तरह से। और एक आई.डी. कपाडिया जो कपड़ा सीते थे, कपाडिया कंपनी, वो कमिटी मेंबर बना। मैं भी कमिटी मेंबर बना। तो हम लोग का नाम ग्रुप ऑफ पीपल इन फीजी गॉट टुगेदर फिजी में, तो एक संस्था शुरू किया, बाबा सेंटर, साइंस सेंटर। हम लोगों ने साइंस सेंटर का नाम रखा था कि श्री सत्य साई बाबा समिति ऑफ सुबह फीजी। तो हमारा नाम बाबा के पास गया था, तो उन्होंने अप्रूव कर दिया था, तो हमने फिर चला दिए। तो इतना बड़ा होने लगा क्राउड। 1970 में मिस्टर कपाडिया के घर पर ज्यादा लोग आ गए। तो उसके बाद से फिर हम लोग देसाई जी ने YMCA यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन का जो जिम्नेजियम था मार्क्स पार्क में, वहाँ पे हम लोग ने हायर कर लिया। तो वहाँ हम लोग भजन करना शुरू कर दिए। फिर हम लोगों ने एक लेडी को मंगाया, उसका नाम था बच्चू बहन, और वो मिस्टर देसाई की बहन थी। वो आकर हम लोग को प्रोसीजर बताया किस तरह से भजन करना चाहिए, तीन ओम होना चाहिए, फिर हम कैसे मंत्र बोलते हैं बाबा के, फिर कैसे आरती करते हैं सभी, फिर भजन कैसे गाते हैं। उसके हम सीखने के बाद फिर हम लोग ने बहुत सारे सेंटर भर में शुरू कर दिया। मेरे घर पे अपना नसून में एक छोटा सा सेंटर शुरू किया था, फिर दमबाती टेम्पल में शुरू किया था, और हम लोगों ने सांगुला में शुरू किया, डिवाइन लाइफ सोसाइटी में शुरू किया, एलांड्रो जाकर वेस्टर्न साइड में शुरू किया, एक्सक्यूज मी, फिर ताबुआ में शुरू किया। इस तरह से मैं फिजी भर में घूम घूम कर लंबासा में शुरू किया। फिर मैं तो तमिनी में भी जाकर बाबा का प्रचार किया। 7 बार मैं कंदाबू गया हूँ, वहाँ पर जाकर कविती लोगों में भी बाबा का प्रचार किया। वहाँ का चीफ मेरे घर पर आया, बाबा से बात करने, बाबा के बारे में बात करने के लिए करके गया। तो मैंने बहुत से इससे कुछ काम किया, उन सब का वर्णन इस पुस्तक में है। ओह अच्छा, बिकॉज ये जस्ट फोकस ऑन फीजी। फीजी में इट डजंट फिजिकली, बाबा फीजी गया नहीं था, बट उसका नाम फीजी चला गया और वहाँ पर लोगों ने सेंटर्स वगैरह बनाकर उसमें विश्वास करने लगे। सो ये बुक पब्लिश हो गया? हाँ, पब्लिश हो गया। अच्छा, इसमें तो कोई भी पीपल बाय कर सकते हैं। और दिस थिंग वाज रिटन बाय लेक्चरर इन USP, प्रोफेसर सुब्रमण्य। सुब्रमण्य। तो आपसे
आपकी मुलाकात उससे हुई? नहीं हुई। अभी नहीं हुआ। नहीं। ओके। उन्होंने मुझे ही वाज लुकिंग फॉर मी, मैं बहुत दिन से ढूंढता था। अच्छा। तो मेरा फिर एक लड़का मिला, उसको अमेरिका यूएसए एक लड़का है, हाँ। उसका नाम था शर्मा। तो उसने उसको एक लड़का बैंकों में कॉन्टेक्ट किया, उसका नाम था विकास लामा। विकास लामा ने मुझे बताया कि तुमको कोई ढूंढ रहा है, तो उसने बताया कि सुब्रमण्य तो हमको ढूंढता है। तो इस पे तब मैंने सुब्रमण्य से ईमेल किया, तो पता चला कि इज लुकिंग फॉर, बहुत दिनों से मुझे ढूंढता था। अच्छा। तो फिर बिकॉज आप कनाडा में थे और फिजी में, बिकॉज दिस बुक वाज रिटन इन फिजी। क्योंकि आई वाज वन ऑफ द फाउंडेशन मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट स्टार्टेड इन फिजी। और उसके साथ साथ में जैसे आपने कहा कि सभी जगह सेंटर तो आपने शुरू कर दिया, लेकिन जो फोकस है, आपने बुक पढ़ लिया ना? अभी पढ़ा नहीं भी नहीं, लेकर हाँ भी लेकर आए। तो कहाँ पर जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, ये बुक को अगर वो पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, कहाँ से ये बुक मिल सकता है? मेरे पास से। आपसे? जी हाँ। आपके पास कॉपीज हैं? मैंने 6 कॉपी मंगाया भी और मंगा सकता हूँ। अच्छा। और फिजी से? पुस्तक है। अच्छा, हेवी पुस्तक है, तो इट टेक्स लॉट ऑफ फ्रेट फिजी से यहाँ पर लाने के लिए। ओके डेनी जी, बात करने को तो हमारे पास बहुत बहुत है बात करने के लिए, लेकिन जब हम समय की ओर देखते हैं तो हमारे पास उतना समय नहीं दिया गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम आपसे ज्यादा बात करेंगे, जब आप बुक पढ़ लेंगे और मैं भी बुक पढ़ लूंगी, देन वी गोना टॉक अबाउट द बुक। अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, और साई राम। साई राम, साई राम टू एवरीबॉडी। धन्यवाद। इस शो को आप देख सकते हैं थर्सडे एट 2:30 PM एंड ऑन संडेज एट 4 PM our Vancouver time on Channel 4 and in Calgary 5 PM on Channel 10. आप लोग YouTube चैनल पर भी फिजियन फोकस को देख सकते हैं, 24/7 आप देख सकते हैं। प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सो इसको स्पॉन्सर करने के लिए प्लीज़ कॉल कमीला एट 604-537-5123। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मैं हूँ आप सबकी होस्ट एंड दोस्त शिप्रा शर्मा।